Ji, starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome to another lecture, which is about understanding requirements. So, in this chapter, we are going to understand what basically requirement is, and in the software engineering, why actually we need to understand the requirement very clearly. Before beginning, before beginning to the actually construction of the software, it is very important for you all to understand the requirement of stakeholders, to actually understand the requirement of the customer, so that this may not create a fuss in the near future, and it may give a very clear, it may give a very clear vision about the software. So in this requirement engineering, we have different phases, or you may say, okay, we have different sort of steps which we need to follow, and we will study these all type of steps in detail. So let's begin with the first step, which is inception. So inception is nothing but just the formulation of a different sort of a questions. Before going to actually start the construction of the software, you actually make a set of questions. You actually make a set of questions in which you understand about the basic understanding of the problem, in which you get the basic understanding of the problem, what actually the problem is, and why do the customer, what's the purpose of the customer behind making the software, why customer is actually trying to make the software, what are the reasons behind it, what is the problem. For example, if I talk to you, if I go to any software house and I ask them, my need for the software is only to mark the attendance of my employees. So with this understanding, the software house the software house developer, or whoever is actually dealing with me, he or she will be asking me about the basic problem. He or she will actually asking me different question on this basic problem. What's the basic problem? The basic problem is, okay, why actually I do want to make this software. So the very first question is the inception. So in this question, you actually make a lot of questions which is relevant to the problem of the customer. Then you start to ask about the people who actually want this type of a solution. Actually, the customer is literate, the customer is illiterate, the customer is, what kind of a customer is, we have different sort of a users for every software. Some are sophisticated users, and some are non-sophisticated users, some are native users. So sophisticated or native users are those users, sometimes people don't have idea how to actually use the software. So for example, if I'm trying to make a software which will be used by the public. So the publicly available machines have built-in software, and these type of a software have a graphical user interface which is easily understood by other people. So the main point behind is this. I just want to make you understand, okay, it's very important for you to first of all ask about the people who are going to use this software. For example, either this software is going to be used by school students, either the software is going to be used by the college student, or either the software is going to be used by the employees. So if the software is being used by the employees, are the employees are enough capable to use any sort of software? So it actually creates a lot of a problem when you create the software and the software goes into the hand of a people which even don't have an idea how to read a single sentence in English language. So you need to think a lot about it. Okay, what kind of a people are going to use this software? Then the third point is the nature of the solution that is desired. What actually the customer is demanding? What is the nature of the solution that the customer being asked to you? So it's very important for you people to ask this. It's actually very important at the step of the requirement engineering. Okay, what kind of a solution? What's the nature of the solution? What kind of solution does the customer actually wants? And then the effectiveness of the primary communication and collaboration between the customer and the developer. Then you also have to think in terms of the effectiveness, which will be the primarily collaboration and communication with the customer and the developer.
In the very first stage, you just start to think about it. Either the communication between the developer and between the customer is going to be really effective or not. So it's actually very effective. So if I conclude this step about the inceptions, it actually says to you, okay, inception is nothing but just to formalize, to establish a set of questions which going to be ask from a developer to any customer. It's basically the inception. So for example, if I give you another example, let's think about a person who comes to you and he demands a software. Okay, actually I want to develop such sort of a software from you which will be having this feature. So the inception says that, okay, at the very first stage, you are required, the developer is required to form a set of questions which will be asked by the developer, uh, and the developer will formalize these questions. You first have to generate a list of a question which you have to ask from the customer at the very first stage, or the very first or at the very first phase. So the second phase is basically the elicitation. So elicitation is like elaborating the things. You just think about, okay, is there any other requirement of the stakeholder which I didn't ask? Is there any which can be, sometimes people just come to you, sometimes you just go to the shop and ask them, okay, I want this type of a solution from you, but actually you are not enough capable to ask things from the customer. So what you do, you actually so what you do at that stage, you actually do nothing. You just give your all sort of a basic problem to the customer, problem to the developer, and the developer dig out the problem and find out what else could be the requirement of the customer at the later stage. So, for example, if you are asking the developer to build a graphical user interface software, but you aren't asking the developer to make it visible to all other users. So later on, the developers consider it. Okay, this will be a very important option for you on the later stages. This is going to be a vital step for you. So the developer add that requirement by himself. So these type of requirements are basically the illicit requirements. So the next phase is basically the elaboration stage. So in the elaboration stage, what you are going to do, you are actually going to create an analysis model that will identify what kind of a data this software will be using, what will be the function of the software, and how this software will be required, how this software is going to behave. And either this software is going to fulfill all sort of a behavior requirements, from behavior, from the behavior point of view. You may consider the behavior requirements as the requirement asked by the customer. Okay, I want the software to interact with me in this language, or I want the software to communicate the other users, or I want the software, when I press a certain type of a button, it should pop up with this message. So these are all the behavior requirements. So the next, you have a negotiation. So it's nothing but just you agree on the deliverable system that is realistic for developers and the customer. So it's just like you just finalizing things, and after finalizing, you just finish talking with the customer on, and you just agree with the customer. Okay, okay, I will be making your product. I will be working on the requirements, but I will charge $100, $10,000, 10,000 rupees, 1,000, whatever suits you. You just agree on it, agree on all the requirements. You just finish this thing on a contract paper, or maybe it may be a communication. Okay, okay, we trust you. You just finish this project in this timeline, when we are paying you some amount in advance, and remaining amount we will pay you at the when you will finish this project. So let's move on. Let's see what else we have with this. So let's begin with requirement engineering two. So that was requirement engineering one, which you were supposed to do with the customer. So these are some other new requirements which you are supposed to do at the beginning of the construction of the software. The very first is specification. Specification is like you just formulate our document. You just write all sort of
requirements as demanded by or as asked by the customer or as asked by the stakeholder. You actually what you do actually, you actually just make a written document of all that are requirements, so that at later stage it may be compared and it may be check out okay, either you have fulfilled all the requirements or not, and you make a specific set of models in order to uh, in order to in order to clearly understand the requirements. And you may sometime formulate some mathematical models, and you make some sort of a different diagrams like use case diagram. You have you might have studied data flow diagrams, so DFDs, so flow chart. So what actually the flow chart represents to you? Flow chart represents us nothing but just the flow or the mechanism or the behavior of any program. So software just like the program, it's just like the instruction. So you actually note down all sort of requirements in use case diagram. Use case is another type of a diagram. It's similar to the similar to the flow chart. So I'll explain this to you in the later stages. You make a generic prototype. So generic prototype is just like a model which will be explaining to you okay, what are the basic requirements of the customer, how this requirements is going to be fulfilled. And at the last phase, you just do the validation. Validation is it's just a mechanism to verify that either the developer has fulfilled all sort of our requirements of the customer, which has been discussed in the very first stage. So that's actually the validation. So what actually we do in the validation, we interpret, are there any errors, or is our software is our software free from all sort of errors? Is there any bug in our software? We actually clarify what more areas do we require to add on. We just look up for the missing information. We just cross verify at the when we finish the when we are done with the project. We actually what we do, we actually just check out okay, is there anything left which we need to do it. And then obviously the inconsistencies are basically the major problem when a large production system is engineered. So then you find then you also cross verify, then you also check for the conflicting or unrealistic requirements. So conflicting or unrealistic requirements are like, at the very first stage customer asks you to make a GUI like like he has proposed it. But when you actually start making your project, you just realize okay, there is the demand raised by the customer or raised by the developer, raised by the stakeholder, is nearly impossible to draw, impossible to implement that design. Sometimes you just ask the developer okay, yeah, we want some sort of this GUI, or we want the design to be like this, but it actually not realistic in the practical field. So that's, you just cross verified okay, is there any unrealistic requirement as asked by the customer in the very first stage. And then finally the last stage, which is the requirement management. So uh, so let's begin with all these other requirements. So I'll be explaining these all phases in details. Inception is the very first stage, so I'll explain this first phase in detail as well. So what does this include? इसके अंदर हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, और स्टेक होल्डर हम देखते हैं कि हमें किससे बात करनी है अपने अपने अगर हमें प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट ऐड करनी है तो वो रिक्वायरमेंट किस किस्म की होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट अगर फुल जो कस्टमर ने स्टार्ट में कोई रिक्वायरमेंट लिखवा दी है वो हमसे फुलफिल नहीं हो पा रही, तो हमें किससे बात करना चाहिए। हमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को भी देखने, कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं, क्या ये कोलैबोरेशन से काम चलेगा। ठीक है जी। सो हु इज बिहाइंड टू रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, एक्चुअली में कौन बंदा है जो ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। फिर उसके बाद इस सोल्यूशन को यूज कौन कर रहा होगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक या सक्सेसफुल सोल्यूशन इस केस के लिए क्या हो सकता है, और कोई रिसोर्स है जो हमें इस सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए बेहतरीन हल जो है वो हमें बता सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो है हम इंसेप्शन स्टेज के अंदर ही क्लियर करते हैं।
सो इंसेप्शन के बाद हमारी जो अगली स्टेज थी वो एलिसिट रिक्वायरमेंट्स थी। सो एलिसिट रिक्वायरमेंट्स में होता है कि आपको कस्टमर ने एक बार रिक्वायरमेंट बता दी हुई, लेकिन आप उस रिक्वायरमेंट के बताने के बावजूद उसको दोबारा डिग आउट करते हो, आप दोबारा उसके ऊपर वर्किंग करते हो कि यार अभी भी कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बताई है कि आप वही फुलफिल हो रही है। अब एलिसिट का मतलब होता है कि उभारना चीज़ को, मजीद उसके ऊपर वर्किंग करके चीज़ को फाइनलाइज करना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप मीटिंग्स करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से भी करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कस्टमर्स के आपस में मीटिंग्स होती है। आप जो है वो एजेंडा उसमें सजेस्ट करते हो कि जी अब हमें किस पॉइंट के ऊपर, देखिए ऐसा नहीं होता कि कस्टमर को बुला लिया आपने, उसके ऊपर टोटली दोबारा से आप उस पर बात करने लगे। आप उस पर एक डेली कोई एजेंडा रख के बुलाते हैं कि जी आपकी फलानी जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसको दोबारा गौर किया, वो अगर इस तरह से हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब वो मीटिंग करने वाले कस्टमर भी हो सकते हैं, डेवलप भी हो सकता है, या बाहर भी कोई हो सकता है। सो डेफिनेशन मैकेनिज्म इसके अंदर क्या है हमारे पास, अ डेफिनेशन मैकेनिज्म कैन बी वर्कशीट्स। डेफिनेशन मैकेनिज्म से मुराद ये कि ये सारा काम आप किसके ऊपर कर रहे होते हैं, तो वर्कशीट्स के ऊपर भी, फ्लिप चार्ट्स या वॉल स्टिकर्स के ऊपर लगा के भी कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के ऊपर या वर्चुअल रूम के ऊपर भी हम ये चैट कर रहे हैं। यानी कि आपने जब किसी से कोई बात करनी है, इस कस्टमर से बात करनी है, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं, आप चैट रूम के ऊपर वर्चुअली भी कर सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी, जैसे आजकल जूम के ऊपर मीटिंग हो जाती है, तो आप उस तरह से भी जो है चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन इन सबका एक ही गोल होता है, उन सबका गोल ये होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, मेन प्रॉब्लम को देखें कि, और उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रपोज करें, और फिर डिफरेंट अप्रोचेस के लिए एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें कि कस्टमर आप डेवलप करना चाह रहा है सॉल्यूशन किसी और अप्रोच से, आप उसे बताएं कि ये अप्रोच से अगर आप करेंगे तो आपको कॉस्ट इसकी ज़्यादा पड़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें डिस्कस करें, या फिर उसमें जो मेन सेट ऑफ सॉल्यूशन जो हो सकता है रिक्वायरमेंट्स का, वो क्या हो सकता है, वो उससे आप जो है वो भी उससे आप डिस्कस करें। तो ये एक लिसिट रिक्वायरमेंट्स के बारे में ये एक छोटा सा आपको चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट के अंदर क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप इस चार्ट के अंदर इलिसिट रिक्वायरमेंट्स का एक जो है ये चार्ट बनाया हुआ है, तो अभी ये डायग्राम कैसे बनी हुई है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बनी हुई है वो हम देख लेंगे। सो इलिसिट रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, और मीटिंग्स के अंदर फाइनलाइज करते हैं कि हमारा इसका फंक्शन क्या होगा, और इसके अंदर में क्लासेस क्या क्या बनाएंगे। हम कंस्ट्रेन अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर इस बनाने में लिमिटेशंस क्या क्या आ सकती हैं। हम क्यूएफडी फंक्शंस को यूज़ करते हैं, क्यूएफडी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट फंक्शन होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। जी कि कस्टमर को 10 8 12 रिक्वायरमेंट्स की, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन सी जिसे हमें सबसे पहले बनाना चाहिए। फिर आप इनफॉर्मली तौर पे भी रिक्वायरमेंट्स का एनालाइज करते हो। अगर इन सारों को, ये सारा काम आप यूज़ केस डायग्राम से भी कर सकते हो। जब आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हो तो उसमें आप फैक्टर्स डिफाइन करते हो, आप सिनेरियोज डिफाइन करते हो, आप एक पूरा टेम्पलेट जनरेट करते हो। सो ये यूज़ केस डायग्राम आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्या है। सो ये वो स्टेप्स हैं जो आप इलिसिट रिक्वायरमेंट के अंदर एक्चुअली कर रहे होते हैं। अब जो आपकी वर्क प्रोडक्ट बन गई है, वर्क प्रोडक्ट बनने के बाद आप अपनी वर्क प्रोडक्ट के अंदर मजीद एलिसिटेशन क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लिसिटेशन के अंदर आप अगर वर्क प्रोडक्ट की लिसिटेशन करना चाहते हैं, मजीद उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट की शक्ल में भी उसे बना सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वर्क प्रोडक्ट करने के लिए, काम को करने के लिए आपकी फिजिबिलिटी की स्टेटमेंट क्या है, आप कितने फिजिबल होंगे इस काम को करने के लिए, आपकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी इन काम करने के लिए। आप बता सकते हैं कि इस काम को करने के लिए, इस सिस्टम को या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन स्कोप क्या होगा इसका, और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होगा। आप ये बता सकते हैं कि ये सारी मैं बातें बता रहा हूँ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में आप मजीद क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद जो आपके काम आ सकते हैं, बता सकते हैं कि जी कौन कौन से इसमें कस्टमर थे, लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, टेक्निकली तौर पे ये प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट्स आपने किस तरह से गैदर की हैं, इसके उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यूजेज सिनेरियोज इसमें कौन कौन से हैं, और वो सारी डिफरेंट डायग्राम्स आप जो है वो उसमें बना सकते हैं, बता सकते हैं कि डिफरेंट जो है ये ऑपरेशंस किस तरह से करेंगे, कोई इसकी प्रोटोटाइप है कि नहीं है जो इसकी रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरह से डिफाइन कर सकती है, तो आप उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इनके कुछ मॉडल्स बनाते हैं। अब उन मॉडल्स में सबसे पहले सिनेरियो बेस्ड मॉडल्स हैं जिसमें आप इनके फंक्शंस डिफाइन कर होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के, ये सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे। यूज केस डायग्राम के जरिए भी आप इनके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो बेस्ड मॉडल्स होते हैं आपके। कुछ मॉडल होते हैं क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड के जिस तरह आप ऊप के अंदर जो है वो एक किस्म के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उनको एक ही क्लास के अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज को क्लास बेस्ड जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं।
फिर उनके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम स्टेट डायग्राम्स लेते हैं और उनके फ्लो को डिफाइन करने के लिए हम डाटा फ्लो डायग्राम लेते हैं। तो आगे चल के मैं इन सारे ये जितने मॉडल्स मैंने बताए, यूज केस है, ये क्लास बेस है, बिहेवियर है या स्टेट डायग्राम है, तो मैं सारी इनकी आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ काम करें। तो अब देखिए यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम हमारी क्या है? यूज केस डायग्राम ऐसी डायग्राम है जो कि यूजर सिनेरियोस को डिस्क्राइब करती है, जो कि बताती है कि अगर एक सॉफ्टवेयर बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या मेन फंक्शन है। कि कभी यूजर अगर किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एक यूजर कोई चीज को ऐड करना चाहता है वो एक अलग सिनेरियो है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एक यूजर शट डाउन करना चाहता है अपने सॉफ्टवेयर को तो वो एक अलग सिनेरियो है। तो वो सारे हमारे डिफरेंट यूजर सिनेरियोज होते हैं। तो आप वो सारे रिक्वायरमेंट्स के अंदर सारे सिनेरियोज को आप डिस्कस करते हैं। और जो बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है उसे हम एक्टर कहते हैं। जो यूजर है, पर्सन है जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा वो हमारा एक्टर होता है। वो एक्टर हमारी पर्सन भी हो सकता है या डिवाइस भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइस भी बाजू का कोई ना कोई जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को कमांड दे रही होती है सेंसर्स के थ्रू। सो हर एक सिनेरियो में हम जो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें प्राइमरी एक्टर कौन होगा, हमारे एक्टर्स जो होंगे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उनका मकसद क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी जिसकी जब वो अपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू या उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की, वो क्या-क्या फंक्शन उससे परफॉर्म कर रहे होंगे, और व्हाट एक्सटेंशन माइट बी कंसीडर्ड एज़ अ स्टोरी इज़ डिस्क्राइब्ड, और वो उसमें मज़ीद क्या-क्या फंक्शनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं, और एक्टर्स की इंटरैक्शन किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या-क्या चाहिए होगी अपने सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए। विल द एक्टर हैव टू इन्फॉर्म द सिस्टम अबाउट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के क्या सॉफ्टवेयर को जो एक्टर है पर्सन वो पहले कॉन्फ़िगर करेगा अगर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आती है। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को किसी ऐसी जगह ऐसे मशीन में इंस्टॉल कर रहे होते हैं जो कि उसके लिए नहीं बनी होती, तो फिर उस केस के लिए आपको क्या सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा। और सिस्टम को एक्टर से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एक्टर जो है वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों के लिए अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गई, कुछ एरर आ गया तो उसको किस तरह से हम यूज़र को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इन सारे पर्पज़ के लिए आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए यूज़ केस डायग्राम एक्चुअली दिखती किस तरह से है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी यूज़ केस डायग्राम है, ये हमारे एक्टर हैं। अब हमने देख लिया कि हमारा जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाया गया है एक सेफ होम के लिए, एक सेफ होम के लिए जो है ये एक यूज़ केस डायग्राम बनी हुई है। यानी कि एक घर है, उस घर की एक एप्लीकेशन बनी हुई है और उस एप्लीकेशन के आगे एक एप्लीकेशन है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक घर है, उस घर के अंदर हमने कैमरास लगाए हुए हैं और कुछ सेंसर्स लगाए हुए हैं, और इन सारे सेंसर्स को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है। अब इस एप्लीकेशन को कौन-कौन यूज़ करेगा? एक घर का ओनर इस्तेमाल करेगा और दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो उसकी सारी सेटिंग की हुई है, 2 बंदे जो है वो उसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो घर का ओनर है वो क्या-क्या काम कर सकता है? वो आम-के-साम सिस्टम को कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल टोटली तौर पे अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। वो सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। वो इन इवेंट्स को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, कोई भी अगर किसी किस्म का भी इवेंट अकर होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेंसर चल रहा है और वो सेंसर चलते-चलते बंद हो जाता है। कैमरा चल रहा है, कैमरा चलते-चलते बंद हो जाता है, तो वो उसके ऊपर देख सकते हैं, या आपने कोई अलार्म लगाया हुआ, कोई बज़र लगाया हुआ है कि घर के अंदर जैसे अगर कोई घुसे तो अलार्म चलना शुरू हो जाए, तो वो अलार्म के ऊपर उस एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज आता है कि जी अलार्म चल रहा है। तो वो उस इवेंट पे उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसी तरह से वो अगर कोई एरर आता है तो वो एरर कंडीशन को भी चेक कर सकता है। लेकिन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सारे सेंसर्स को दोबारा कॉन्फ़िगर कर सकता है, उनके फीचर्स चेंज कर सकता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि एप्लीकेशन क्या-क्या प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से हम जो है वो यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि इस एप्लीकेशन को कौन-कौन बंदा इस्तेमाल करेगा, और अगर बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो क्या-क्या इनपुट दे सकता है और आगे उससे आउटपुट जो है वो क्या-क्या हो सकती है। फिर इसी तरह से ये हमारे पास क्लास डायग्राम है। सो क्लास डायग्राम के अंदर अगर मैं उसी सेंसर की बात करूँ तो हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कोई मैंने कोई टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है, या मैंने मोशन सेंसर लगाया हुआ है अपने घर के अंदर। तो एक अलग से क्लास बना के मैं उसमें सेंसर का नाम, ये टाइप क्या है, किस जगह के ऊपर लगा हुआ है, एरिया क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैं सारे एक ही जगह पे हर डिफरेंट सेंसर की क्लासेस बना के, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर की एक ही सेंसर की क्लासेस बना के जो है मैं उस एप्लीकेशन में डिफाइन कर सकता हूँ, और उसका उस सेंसर के फंक्शंस क्या है वो आइडेंटिफाई करेगा, वो इनेबल डिसेबल कर सकता है, वो उसको हम उस सेंसर को रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। फिर इस तरह क्लास डायग्राम के बाद ये हमारी स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम्स हम बनाते हैं
बताने के देखें, जैसे अगर कमांड्स को अगर रीड कर रहा है बंदा, तो उसे क्या क्या मैसेज जो है डिस्प्ले हो सकते हैं। रेडी का मैसेज डिस्प्ले हो सकता है, एंटर सीएमडी का मैसेज आ सकता है, या ये मैसेज आ सकता है कि अब आपकी जो स्टेटस है वो स्टडी स्टेटस है या रनिंग में है। और क्या हो सकता है, अगर वो कोई काम करने लगता है, कोई एक्शन परफॉर्म करने लगता है, तो तब उसको कौन कौन सी स्टेट्स या डिफरेंट स्टेट्स के मैसेज शो हो सकते हैं कि आप यूजर इनपुट को इंटरप्रेट करें, या यूजर से इनपुट लें, या फिर पोल यूजर इनपुट पैनल। तो ये हमारी स्टेट डायग्राम, यानी कि जिस तरह से आप क्लास डायग्राम में आते हैं, स्टेट डायग्राम में आप ये शो करते हैं कि अगर यूजर कैमरा को देख रहा है, अगर यूजर एक एप्लीकेशन के जरिए से, एक एप्लीकेशन के मोबाइल पे उसने एप्लीकेशन किए हुए है, मोबाइल पे एप्लीकेशन को कैमरे में देख रहा है, तो अगर उसने कैमरे को जूम करना है, तो जूम करने के लिए उसे जूम के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो उसे क्या शो होना चाहिए, उसे नजर आना चाहिए कि आप जूम कर सकते हैं, जूम नहीं कर सकते। वो जिस भी स्टेट में जो भी फंक्शन यूज कर रहा है, उस फंक्शन के मुताबिक उसे हमने मैसेजेस क्या क्या डिस्प्ले कराने हैं। फिर आगे हमारे पास हम सारे जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम हर एक स्टेक होल्डर की विन कंडीशन देख लेते हैं। विन कंडीशन मुराद ये होता है कि जो यूजर आपके पास आता है वो खुश कब होगा, जब उसे आप सारा काम करके देंगे तभी वो खुश होगा ना, तो वो उसकी विन कंडीशन कहलाती है। तो फिर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को एंड पे निगोशिएट भी करते होते हैं, आप ये भी बताते होते हैं कि जनाब इसमें से ये चीज़ें हम आपकी पूरी कर देंगे, और इन चीज़ों के बनने में थोड़ा सा मसला आ सकता है। फिर फाइनली जो लास्ट स्टेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये है हमारा वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स। सो वैलिडेट से क्या मतलब, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वैलिडेशन के अंदर आप क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारी हर रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट है, पूरी हो गई है, क्या जो जो लोगों ने हमें बताया था एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और मेन अपर लेवल पे क्या टेक्निकल डिटेल सॉफ्टवेयर में नजर आनी चाहिए, क्या वो सारी हमने पूरी कर ली है। क्या ये कोई भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी इसके अंदर फीचर ऐड करने के लिए, जो हमने ना किया हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो इस सिस्टम के लिए, वो हमने ऐड किया कि नहीं किया। और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं जो यूज़र ने हमें कही हो लेकिन वो क्लियरली तौर पे फुलफिल ना हो पा रही हो। क्या हर एक रिक्वायरमेंट, noted for each requirement, does each requirement have an attribution that is a source generally specific individual noted for each requirement? क्या हर एट्रीब्यूट के लिए जो जो उसने बातें हमें बताई थी, क्या वो सारी बातें फुलफिल हो रही या नहीं हो रही? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा हो? और या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हर रिक्वायरमेंट हमारी टेक्निकल इन्वायरमेंट में, टेक्निकली तौर पे जब हम इसे यूज़ करते हैं तभी वो फुलफिल होती है कि नहीं होती? क्या हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से कि नहीं किया? और क्या रिक्वायरमेंट मॉडल प्रॉपर्ली तौर पे इंफॉर्मेशन फंक्शन बिहेवियर सिस्टम का जैसे उसने कहा था वैसे ही बिल्ट हुआ है कि नहीं हुआ? और क्या रिक्वायरमेंट मॉडल पार्टीशन कर दिया है हमने उसी तरह से जिस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया है? सिस्टम की जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वायरमेंट से गैदर की है, क्या उसी तरह से ये मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Have requirements pattern be used to simplify the requirement model? Have all the pattern being properly validated? कि हम हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उन रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर पैटर्न से, प्रॉपर मेथड से वेरीफाई करके बनाया है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, या फिर हमने कोई नई चीज़ ही कर ली? मतलब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कुछ इसके पैटर्न होते हैं इसको करने के, तो हमने वो पैटर्न्स को फॉलो किया कि नहीं किया? सो वैलिडेशन अगर सिंपल बातों में बताया जाए तो वैलिडेशन ये है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आपने स्टार्ट में बनाई हुई थी, क्या वो सारी आपने फुलफिल की या नहीं की?